Hello everyone. Okay, so welcome to this part 2 of optical activity. पिछले वीडियो में आपने पढ़ा about the light, right? जो कि electromagnetic radiation, electric and magnetic field acting together, something like that. फिर हमने पढ़ा about the unpolarized light, जो कि है ordinary light, जो vibrate होता है all directions में. उसको convert किया plane polarized light by passing through a polarizer. Then the plane polarized light got rotated, right? तो वो rotate होता है clockwise या anti clockwise, that is left rotation and right rotation, बराबर. तो हमने ये सारे के सारे basics पढ़ लिए. अब हम देखते हैं कि optical activity की conditions क्या है. Now जो कंपाउंड, so you have this polarized plane polarized light, right? जो कि वाइब्रेट होता था सिर्फ एक पोजीशन पे, एक डायरेक्शन में, लेकिन when it encounters this organic compound, ये organic compound में क्या मतलब what are the features of that organic compound, ये organic compound कैसा होना चाहिए, because of which this phenomenon is shown. ये plane polarized light क्यों rotate हो गया, right? So from chemistry point of view हम सिर्फ ध्यान देंगे about the molecules, the structural features of molecule and different terms. Okay, so let me be clear. हम लाइट के एस्पेक्ट्स या रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स को बिल्कुल भी टच नहीं करें, बिकॉज दैट्स बेसिकली समथिंग फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो हम सिर्फ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, इन सब चीजों के बारे में ध्यान देंगे इस वीडियो में. ठीक है, चलो चलते हैं अबाउट दिस वीडियो. एंड अगेन दिस वीडियो इज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग. ओके, ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, तो आज चलो चलते कुछ रिवीजन करके. ठीक है, so you have this plane polarized light and okay, optical activity and optically active compound. I think previous video में मैंने already कुछ aspects discuss किए थे, right? So इस optical activity and optically active compound, तो अगर आप इसको देख रहे हो तो ये basically है plane polarized light, right? ये plane polarized light basically क्या होता है इसके साथ. Now try to see this. It gets rotated either right or clockwise, left or anti-clockwise, right? तो can you see ये plane polarized light rotate हो गया right की तरफ, and then this has got rotated towards the left, right? तो optically active compounds basically यही होते हैं. They are basically those compounds which rotate the plane polarized light in any of these direction. Either it can be right और इधर इट कैन बी लेफ्ट, करेक्ट? तो मैं इनके डायरेक्शंस मार्क कर देता हूं सो दैट यू आर कन्वीनियंट. सो बेसिकली दिस इज द रेफरेंस. तो ये है राइट रोटेशन, राइट, और ये है लेफ्ट रोटेशन, करेक्ट? और आपने खुद ही देखा ये रोटेशन होता है अ पर्टिकुलर एंगल, जिसके वजह से हम वैल्यू देखकर ही हमको वैल्यू देखकर भी पता चल जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव है देन राइट रोटेशन या क्लॉकवाइज, एंड देन अगर नेगेटिव है देन लेफ्ट रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं. इट कैन बी ईदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. नाउ इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट न हो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, right? So basically what is optical activity? Optical activity is a phenomenon in which certain molecules rotate the plane polarized light either towards the left or towards the right, and उन molecules को हम क्या बोलते हैं? Optically active compounds. Okay, so now the question is, we have millions and millions and billions of molecule, right? मैं अभी एक molecule draw कर सकता हूँ using the bond line notation. I can draw n number of molecules. क्या सभी molecules rotate करेंगे? Answer है नहीं. Okay, so for this molecule to rotate the plane polarized light, कुछ conditions satisfy होने चाहिए. Excuse me. Yes, for this molecule to rotate the plane polarized light, कुछ conditions satisfy होने जरूरी है. Okay, so आइए देखते हैं what are the basic conditions. ठीक है, so first let me clear this out. Okay, now the first condition. So can you see this asymmetric carbon center? What do you mean by asymmetric carbon center? राइट, तो अगर मैं कार्बन के बारे में बताऊं तो कार्बन के होते हैं चार वैलेंसीज, राइट? सो वैलेंसी फॉर द कार्बन इज 4. मैं प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, नॉर्मली होता है टेट्राहेड्रल, राइट? तो करेक्ट. तो कैन यू सी कार्बन से अटैच चारों ग्रुप सिमिलर है,
करेक्ट। अगर तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन, ऑल फोर सेम ग्रुप्स और सिमिलर ग्रुप्स, राइट। नाउ अब मैं काम कर देता हूं, इस Cl को निकाल के मैं यहाँ पे डाल देता हूं कोई भी एक ग्रुप X, इट कैन बी Y, इट कैन बी एनीथिंग। तो अब ये हो गया अनसिमेट्रिक। नाउ मैंने सिमेट्रिक कहा, अनसिमेट्रिक कहा, लेकिन हमारे सिस्टम के सामने है असिमेट्रिक। तो बेसिकली असिमेट्रिक क्या होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। So let's talk about this. Have a look at this molecule, okay? And have a look at this molecule. So if you could see here, इन दो मॉलिक्यूल में क्या कॉमन है? तो कैन यू सी कार्बन इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, ओके, ठीक है, हाइड्रोजन। देन यह है इथाइल ग्रुप, यह है OH, यह है CH3। व्हाट डज दैट मीन? चारों के चारों ग्रुप्स है अलग, राइट। तो इसे हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन सेंटर, राइट, जिसे हम कहते हैं काइरल सेंटर। सो व्हाट इज काइरल कार्बन और काइरल सेंटर? इट इज बेसिकली अ कार्बन एटम, a tetravalent carbon atom whose all the four valencies are satisfied by four different atoms or group of atoms. Can you see? ये वैलेंसी को सेटिस्फाई किया हाइड्रोजन ने, जो कि है एक एटम है। इसको सेटिस्फाई किया है ये इथाइल ग्रुप ने, जो कि है एक ग्रुप, ओके। और ये भी है एक फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल इज आल्सो अ ग्रुप। अब इसकी तरफ देखते हैं, तो कैन यू सी दिस कार्बन इज सेटिस्फाइड और कनेक्टेड टू CH3, CO2H, which is COOH, and then you have OH, H, right? तो बेसिकली असिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या है? असिमेट्रिक सेंटर का मतलब है कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट। नाउ मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था जो कि था CH3Cl। तो कैन यू सी, इसे कहते हैं अनसिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, जिसे हम कहते हैं काइरल सेंटर और या काइरल कार्बन, ओके। तो सबसे पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ काइरल सेंटर या काइरल कार्बन, ओके, प्रेजेंस ऑफ काइरल सेंटर या काइरल कार्बन, ओके। तो ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। काइरल कार्बन का दूसरा नाम है असिमेट्रिक कार्बन, ओके। अब हम आगे जाते हैं फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। सो इसमें कितने काइरल कार्बन है? दिस इज वन काइरल कार्बन, दिस इज वन काइरल कार्बन। नाउ कार्बन्स तो बहुत सारे, कैन यू सी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये असिमेट्रिक नहीं हुआ। कैन यू सी 2 हाइड्रोजन असिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये वो कार्बन होता है जो 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से कनेक्टेड होता है, ओके। लेट्स मूव ऑन। ये क्या? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज 2 raised to n, राइट। नाउ एक मॉलिक्यूल के मैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स लिख सकता हूं, राइट, बट सिर्फ कुछ ही स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम स्टडी करेंगे। तो एक फॉर्मूला है, दैट्स बेसिकली द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। सो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 raised to n, right, where n is basically the number of chiral carbons or asymmetric carbon, okay। तो आपके पास होगा एक स्ट्रक्चर, आप उसमें आइडेंटिफाई करेंगे chiral carbon, देन कितने स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं? 2 raised to n। तो रूल है 2 or more structures should be possible, ओके। तो ये है सेकंड रूल। फर्स्ट रूल है chiral carbons should be there, सेकंड 2 or more structures should be possible। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 raised to n। Now again you have to understand, ये सारे के सारे structures ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। There are lot of exceptions जो कि आप आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। Yes, so let's have a look। देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को। तो the same molecule, the first molecule, right, and then you have the second molecule, ठीक है। अब सबसे पहले हम मार्क करते हैं काइरल सेंटर को, ठीक है। तो इसमें है ये काइरल सेंटर और इसमें है ये काइरल सेंटर, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं n is equal to 1, that means 2 raised to 1 structure which is basically 2 structure, right। यहाँ पे भी n is equal to 1, that means it is going to have 2 structures, राइट। तो हम ड्रॉ कर सकते हैं 2 स्ट्रक्चर्स, राइट। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम मिनिमम या मैक्सिमम जो कुछ भी कितने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का क्या कोई क्राइटेरिया है, राइट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। क्राइटेरिया फॉर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। नाउ हम रैंडमली कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स शुड हैव object and mirror image relation। What does that mean?
कैन यू सी, ये है एक वेज डॉट रिप्रेजेंटेशन, राइट? ये है काइरल कार्बन, करेक्ट? कैन यू सी दिस? तो काइरल कार्बन कनेक्टेड है रेड स्पीयर, ग्रे स्पीयर, ब्लू स्पीयर और ग्रीन स्पीयर। तो कैन यू सी, मैं इसका, मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर कैसे होगा? इट विल बी द मिरर इमेज, राइट? मिरर में लेफ्ट साइड में जो होगा, कैन यू सी, दैट्स गोइंग टू कम ऑन राइट साइड। सो कैन यू सी दिस? दिस इज ऑन द राइट साइड, ये आ गया लेफ्ट साइड में। ऊपर का एटम ऊपर ही रहेगा, बट कैन यू सी दिस हैज चेंज पोजीशन। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस क्राइटेरिया फॉर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, राइट, जो स्ट्रक्चर आप बेसिकली ड्रॉ करेंगे, उनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। व्हाट इज दैट रिलेशन? उनमें होना चाहिए ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। मतलब एक स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसका मिरर इमेज। ओके, डोंट वरी, हम कुछ कंपाउंड्स के ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे, दैट टाइम यू विल नो हाउ टू ड्रॉ इट। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो पहला क्राइटेरिया काइरल कार्बन होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स रैंडमली नहीं लिख सकते, स्ट्रक्चर्स इस तरह से होने चाहिए कि उनका ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज रिलेशन होना चाहिए, राइट? सो नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट। तीन क्राइटेरिया तो आ गए। नाउ कैन यू सी दिस? अब ये ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज का भी एक क्राइटेरिया है, राइट? रैंडमली ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज हम ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? दे शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? ओके, वेरी सिंपल। सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को मैं उठाकर इस पर रख देता हूं, राइट? तो ये स्पीयर के साथ कोइंसाइड होगा। ओके, सो ये स्पीयर के साथ कोइंसाइड होगा, ये भी कोइंसाइड हो जाए, ठीक है? लेकिन ये स्पीयर कोइंसाइड नहीं होगा इस स्पीयर के साथ। दिस विल कोइंसाइड विद द वॉयलेट स्पीयर, और ये स्पीयर जो कि वॉयलेट है, दिस विल कोइंसाइड विद द वाइट स्पीयर, राइट? तो एक सिंपल एग्जांपल है, राइट? तो मेरे पास है ये दो हाथ, राइट? सो दे आर बेसिकली द मिरर इमेज, माय लेफ्ट हैंड एंड माय राइट हैंड। अगर मैं एक हाथ को उठाकर दूसरे के ऊपर रखना चाहूं, तो कैन यू सी, कोई भी फिंगर कोइंसाइड नहीं होता, राइट? इसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल। ओके, सुपर इम्पोसिबल का मतलब क्या है? इसको उठा के, कैन यू सी दिस? दीस आर सुपर इम्पोसिबल, राइट? नॉन सुपर इम्पोसिबल मीन्स क्या? आप उस स्ट्रक्चर को बिना रोटेट किए वैसे के वैसे ही उठाकर दूसरे स्ट्रक्चर पे रखें, बिना रोटेट किए। ओके, यस, सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज नॉन सुपर इम्पोसिबल, राइट? अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है? तो कैन यू सी, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठाकर, ओके सॉरी, सो कैन यू सी दिस? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठाकर इसके ऊपर रख दूं, तो दे विल नॉट कोइंसाइड, तो ये है नॉन सुपर इम्पोसिबल, राइट? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया। ओके, नॉन सुपर इम्पोजिबल के कुछ एग्जाम्पल्स। Just now I told you about the right and the left hand. Can you see this? Right and the left leg. Again, they are non-superimposable, right? Now, this is superimposable. Can you see? ये एक ग्लास है, दूसरा ग्लास है. Can you see? They are mirror images. इसको उठाकर इसके ऊपर रखा जाए, they will coincide, right? तो ये है chiral and this is non-chiral. Okay? Anyway, non-chiral compounds आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इतना याद रखना है, they should have object and mirror image relation, जो कि होना चाहिए non super impossible. ओके, नॉन सुपर इम्पोजिबल। आइए देखते हैं कुछ और इमेजेस। ओके, तो कैन यू सी, अब सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल के कुछ एक्सक्लूसिव इमेजेस देखते हैं। अभी अभी मैंने बताया द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड, राइट? तो कैन यू सी, लेफ्ट हैंड को मैंने उठाकर रख दिया अपने राइट हैंड पे, तो कैन यू सी they cannot be superimposed, right? तो ये है non superimposable। जबकि दूसरा, हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, राइट? तो कैन यू सी, ये है एक फ्लास्क और मैंने इसे उठाकर रख दिया इसके ऊपर, तो कैन यू सी दिस? दोनों एक ही कंपाउंड हो गए, एक ही हो गया। उसका मतलब दे कैन बी सुपर इम्पोज, राइट? तो ये है सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल का सिंपल डेफिनेशन। ओके, नॉन सुपर, जस्ट वेरी सिंपल एग्जांपल्स, यू नीड नॉट वरी अबाउट
थिंग्स आर वेरी सिंपल। जब हम मॉलिक्यूल्स के साथ वर्क करेंगे अबाउट द कायरलिटी और द ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट, उस वक्त चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हमें मिल गया ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो रिवाइज करते हैं। पहला कायरल सेंटर, सेकंड दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर, फॉर्मूला है 2n where n is number of chiral carbons, राइट। तीसरा ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, चौथा नॉन सुपर इम्पोसिबल, राइट। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। यस, नाउ तो ये सारे के सारे जो कंडीशंस है, राइट, अगर ये फुलफिल हो गए देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये चारों के चारों कंडीशंस फुलफिल हो गए, कायरल, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप और ये नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी, इसे अगर ये चारों के चारों कंडीशंस फुलफिल हो गए तो हम इसे कहेंगे द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ना जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, उन्हें हम कहते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, उसे हम कहते हैं enantiomers. Okay, so what are enantiomers? They are the structures which are non-superimposable mirror images of each other. Okay, इसे हम कहेंगे enantiomers. Non-superimposable mirror images, very simple thing. Okay, तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल करे कोई कंपाउंड, सो दैट कंपाउंड इज बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। नाउ वेरी सिंपल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है मेरे पास, राइट। तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है राइट और क्लॉकवाइज, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो। ओके, डेक्स्ट्रो, राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो। और दूसरा है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम कहते हैं लेवो। डेक्स्ट्रो है D प्लस, राइट, डेक्स्ट्रो। ओके, डेक्स्ट्रो इज बेसिकली स्मॉल d और इसका साइन है पॉजिटिव, लेवो इज स्मॉल l और इसका साइन है नेगेटिव, राइट। एक सिंपल एस्पेक्ट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। लेट्स से एक सर्कल है मेरे पास, राइट, और ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ ध्यान से देखो, अगर मैं एक रे ड्रॉ करता हूं, सो अगर ये इस पोजीशन पे होगा, राइट, तो बेसिकली ये जो एंगल थीटा है, राइट, थीटा, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। जबकि अगर ये इस तरफ होगा, राइट, सो इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट, सो ये होगा नेगेटिव वैल्यू। तो याद रखना है L स्टैंड्स फॉर लेवो विच इज लेफ्ट और नेगेटिव, एंड D इज पॉजिटिव। अगेन D पॉजिटिव, L नेगेटिव। उसका मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो सकता है क्लॉकवाइज भी या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भी, बट नॉट एट द सेम टाइम, एट अ टाइम ओनली वन रोटेशन। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन अगर एक साथ रोटेट हो गया तो क्या हो गया। जस्ट इमेजिन ये है रे, दिस गॉट रोटेटेड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गया अपनी जगह पर, तो क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा? नहीं, राइट, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नॉट देयर अगर प्लेन पोलराइज्ड रोटेट न होगा, प्लेन पोलराइज्ड रोटेट न होगा, ठीक है। तो ये सेपरेटली हम पढ़ेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट। सो ये था रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, नाउ ओके, सो वी हैव एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, सो let's see what exactly he wants to ask. Okay, now this Dexter is asking one simple question. अगर मेरे पास दोनों, एक कंपाउंड के दो फॉर्म्स है, डेक्स्ट्रो और लेवो है, मैंने दोनों को इक्वली मिक्स किया तो क्या होगा? Yes, it's an interesting question. Okay, so let's see what exactly this Dexter has to say about. Okay, now if I mix both of them in equal proportions, okay, what do I get? Okay, interesting question. Okay, let's see. If I mix dextro and levo in equimolar mixture, what do you mean by that? मेरे पास है एक कंपाउंड X, राइट, तो बेसिकली मेरे पास है एक कंपाउंड X जिसका है डेक्स्ट्रो फॉर्म और लेवो फॉर्म मेरे पास, राइट। तो मैंने इसका लिया 1 मोल, 10 मोल, 100 मोल, जो कुछ भी है, इसका भी लिया 1 मोल, राइट। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, दोनों को मिक्स किया और पोलैरिमीटर में डाल दिया, तो रीडिंग क्या आना चाहिए? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। तो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। सो नाउ ये है
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट रोटेशन, और ये है लेफ्ट रोटेशन, राइट। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बेसिकली क्या होगा, राइट। सो कैन यू सी दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कुछ इस तरह से था वो इस तरफ रोटेट हो गया ड्यू टू डेक्स्ट्रो और इस तरफ हो गया ड्यू टू लेवो। तो बेसिकली क्या मिला, मुझे मिलेगा एक जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, राइट। सिंपल एग्जांपल, कंपाउंड तो सेम है, तो जस्ट इमेजिन अगर इसका रोटेशन है +20, इसका होगा -20। अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, राइट। तो इस जीरो ऑप्टिकल रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, सो दिस जीरो ऑप्टिकल रोटेशन वी नॉर्मली कॉल एज द रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो रेसिमिक मिक्सचर होता है, नाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो रोटेट हुआ नहीं, तो बेसिकली ये है क्या, राइट, ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो वी गेट रेसिमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। उस कंपाउंड को हम कहेंगे रेसिमेट। ओके, या तो हम कहेंगे +-DL, इसका मतलब है दोनों को मिक्स किया है इन इक्वल मोल, और ये है एक मिक्सचर, ओरिजिनल कंपाउंड नहीं है, तो इसे कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ओके, सो बेसिकली Dexter, this is for you. Your question is answered right now. If we mix dextro and levo in equimolar mixture, we get zero optical rotation. That means the plane polarized light is not rotated, right? If it is not rotated, it is called as optically inactive. Okay. So this was about the very simple thing and a very simple question. Yes. Okay. So you have these things. तो ये था बेसिक about the dextro, levo and all other things, right? Now in the next video, basically we are going to talk about some other important aspects, like कुछ examples. Thank you.